سنیں گے اور برکت پائیں گے اور اس میں بڑھیں گے، اور آپ کی روحانی ترقی بھی اس میں کثرت کے ساتھ ہوگی۔ اور ہمیشہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو آپ کے ساتھ وعدہ ہے آسمانی، اس میں آپ عزیزو اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کوشش جب تک انسان اس زمین کے اوپر زندہ ہے تو انسان کو ضرور ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے۔ انسان گرے گا بھی، لیکن میرا اور آپ کا خدا آپ کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہی اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کہ خدا گرتے ہوئے کو اٹھاتا ہے، جھکے ہوئے کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آئیے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالے کی تلاوت کرتا ہوں۔ پیدائش ہے، اس کا 17واں باب ہے اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح میں تمام بہن اور بھائیوں کو یسوع مسیح میں سلام، خوش آمدید۔ جو یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، شکر گزار ہیں۔ کافی دیر کے بعد آج خدا نے موقع دیا ہے کہ آپ کا خدا کے کلام کو شیئر کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ خدا جو وفادار خدا ہے، ہم کام کاج کرتے ہیں، خدا ہمارے کام میں برکت ڈالتا ہے، اور ہم اس کے کام کو بھی محنت مشقت کے بعد خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے کلام سے، تاکہ لوگ مستفید ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمارے نیو منسٹری یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سنیں گے اور برکت پائیں گے اور اس میں بڑھیں گے، اور آپ کی روحانی ترقی بھی اس میں کثرت کے ساتھ ہوگی۔ اور ہمیشہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو آپ کے ساتھ وعدہ ہے آسمانی، اس میں آپ عزیزو اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کوشش جب تک انسان اس زمین کے اوپر زندہ ہے تو انسان کو ضرور ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے۔ انسان گرے گا بھی، لیکن میرا اور آپ کا خدا آپ کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہی اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کہ خدا گرتے ہوئے کو اٹھاتا ہے، جھکے ہوئے کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آئیے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالے کی تلاوت کرتا ہوں۔ پیدائش ہے، اس کا 17واں باب ہے اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے۔ لکھا ہے، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا، بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، آج کا جو مضمون، جو ٹاپک بائبل مقدس میں سے، خدا کے کلام سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کیوں، وہ ابرام سے ابراہم۔ ابرام سے جی ابراہم۔ تو ابراہم جو تھا وہ ایک عظیم ایماندار شخص تھا، اور تاریخ میں نہایت اہم شخص تھا۔ اور اس دنیا کے اندر 3 عالمی مذاہب ہیں، یعنی کہ یہودیت، مسیحیت اور اسلام اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، یعنی کہ پرانے عہد نامہ کے 16 کتابوں کے اندر ہمیں ابراہم کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اور نئے عہد نامہ کی 11 کتابوں میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور جو ابرام تھا، یہ میسوپوٹامیہ میں رہتا تھا، اور میسوپوٹامیہ کے اندر جو تھا وہ غیر قومیں تھی، اور غیر قومیں وہ جو بت پرستی کے اندر تھی۔ اور جو ابرام تھا، اس کے باپ کا نام تارا تھا۔ ہم نے اس خدا کے بندہ جس کے یہ 2 نام ہیں، یعنی کہ ابرام اور ابراہم، جس سے خدا ابرام سے ابراہم بناتا ہے،
हमने इसके मुतल्लिक़ इस स्टोरी को हमने इसको समझना है। जो अब्राम का मतलब है वो है सरफराज बाप। क्या जी, ये है सरफराज बाप। लेकिन जब तक हम इस गहराई के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें अब्राम से अब्राहम की समझ नहीं लगेगी। हमें देखना है कि कैसे अब्राम खुदा के साथ वफादार रहा है। नंबर एक है कि उसकी जो है वो बुलाहट है। जब अब्राम मेसोपोटामिया के इलाका में रह रहा था तो खुदा ने उसे बुलाहट दी, खुदा ने उसे कॉल की और कहा कि तू अपने नातादारों को छोड़ और उस मुल्क को जो मैं तुझे देने वाला हूँ, जो कि तेरा भी नहीं पर गैर कौम का, वो मैं तुझे दूंगा और तुझे मैं बहुत बरोमंद करूँगा और तुझसे कौमें और उम्मतें जो हैं वो पैदा होंगी। तो अजीज़ो, जो अब्राम था उसने खुदा के हुक्म को माना है, उस बुलाहट को उसने जाना है और उस बुलाहट के सबब से वो अपने नातादारों को छोड़ा है और अब्राम जो है वो वहाँ से चल पड़ा है। और जब वो चल पड़ा है, लेकिन हम देखेंगे कि उसके साथ एक और भी शख्सियत जुड़ गई है जो उसके साथ है, और वो है उसका भतीजा लूत है, जो लूत उसके साथ चल पड़ा है। अब दोनों सफ़र कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ठहराव होता है और इनके पास मुआशी हैं, थोड़े सी हैं, लेकिन खुदा उस थोड़े में बरकत डालता है और उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो अजीज़ों भेड़ बकरियाँ ऊँट गाय बैल खुदा उन्हें बरकत देता है। वो हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि ऐसा होता है कि अब्राम और जो लूत है उसके चरवाहों के दरमियान जो है वो झगड़ा हो जाता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो अब्राम उसको बुलाता है। अब्राम जब लूत को बुलाता है तो लूत को कहता है कि मेरे और तेरे दरमियान, मेरे और तेरे चरवाहों के दरमियान अब कभी झगड़ा ना हो, और तू ऐसा कर के ये तू अगर दाएं जाएगा तो मैं बाएं चले जाऊंगा, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चले जाऊंगा, अगर तू यानी कि मशरक़ की तरफ जाएगा तो मैं मगरब की तरफ चले जाऊंगा, अगर तू शुमाल की तरफ जाएगा तो मैं जनूब की तरफ चला जाऊंगा। सो एक पहाड़ के ऊपर वो खड़े हैं तो अब्राम उससे कहता है लूत से कि देख, जो हिस्सा तू चाहता है तो उस तरफ चला जा। तो जो लूत है वो उस तराई को जहाँ सब्जा है, जहाँ पे हरियाली है, उसको अजीज़ों वो पसंद करता है और उस तरफ चला जाता है। और जो अब्राम के पास हिस्सा आता है वो सिर्फ और सिर्फ बंजर ज़मीन है, जिसके लिए उसे बहुत तग दौड़ करने की ज़रूरत है। लेकिन अजीज़ों याद रखिए, यहाँ पर जो बुलाहट है इसके अंदर वफादारी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और देखिए अब्राम के अंदर जो वफादारी है वो कैसी है। वो नहीं चाहता कि मेरे चरवाहों के दरमियान और उसके चरवाहों के दरमियान कभी झगड़ा हो। अजीज़ों, जो रूह है जो जिस्म के ख़िलाफ़ जंग करता है और जिस्म जो है वह रूह के ख़िलाफ़ जंग करती है। हमने देखना है कि इस जंग के अंदर जो आज़माइश की जंग है इसके अंदर अब्राम जो है इसने अजीज़ों फतह पाई है। अपने अंदर एक वफादारी को इसने कायम किया है कि ये बुलाहट मेरी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से है, और खुदा चाहता है कि मेरे अंदर वफादारी। हमने गौर करना, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम हरियाली को पसंद कर लेते हैं और क्या करते हैं, खुशक साली को हम पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम हरियाली को छोड़कर खुशक साली को पसंद करेंगे तो वो खुदा जो हरियाली की तरफ इंसान जाता है वो उस बंजर ज़मीन को उससे भी ज़्यादा अजीज़ों हरियाली में तब्दील करने की कुदरत रखता है। और याद रखिए, जब ये वाक़या हो रहा है तो इससे पेशतर जब खुदा ने अब्राम को बुलाया है, उस बुलाए जाने के बाद
आप बाइबल मुकद्दस की स्टडी कीजिए, बाइबल मुकद्दस को पढ़ लीजिए। खुदा ने जब उसको बुलाया है तो उस बुलाए जाने के बाद खुदा ने कभी भी अब्राम के साथ बात नहीं की है, इसलिए कि रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ जंग करता है। जब उसने उस जंग के अंदर फतह पाई है और अपनी उस बुलाहट को जाना है, अपनी वफादारी को खुदा के सामने उसने रखा है, तो याद रखिए जैसे ही लूत उससे जुदा हो गया, खुदा आकर उसके सामने ठहर गया और खुदा ने कहा अब्राम नजर उठा कर देख, नजर उठा कर देख, ये जो मुल्क जो है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। हमेशा खुदा के साथ वफादार है हमारा खुदा, जो वफादार खुदा है। लूत ने तो हरियाली को पसंद कर लिया, समझ लीजिए कि उसने लूत ने तो ऊंट कटारों को पसंद कर लिया, लेकिन जो अब्राम है उसने खुदामंद यीशु मसीह के फजल को अपना लिया है। और इसलिए पौलुस रसूल भी कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। खुदा अपने लोगों के ऊपर फजल पर फजल करता है, और हमेशा याद रखिए खुदा के फजल के अंदर हमें रहने की ज़रूरत है। और नंबर 3, अगर बुलाहट है तो बुलाहट के अंदर जो है वो वफादारी है, और वफादारी के साथ ही खुदा हमेशा अपने लोगों को सरफराज करता है। और याद रखिए फिर खुदा ने जो है वो अब्राम को सरफराजी दी है। और आप देख सकते हैं आज भी पूरी दुनिया के अंदर खुदा ने जो वादा अब्राम से बांधा था कि आज के बाद तू अब्राम नहीं होगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा। जो अब्राम मैंने बात कर रहा था, जो अब्राम का मतलब है वो है सरफराज बाप, और तो जो अब्राहम का मतलब है वो है बहुतों का बाप, कौमों का बाप, और इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि ईमानदारों का बाप। हमेशा याद रखिएगा मत्ती के अंदर हमें एक हवाला जो है वो यहूदियों की तरफ से मिलता है, जिसके अंदर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो बात करता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और फकी फरीसियों से वो बात कर रहा है। कहता है कि फकियों और फरीसियों को इस तरह उसने मलामत की है, और उसने कहा है कि अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है। आप याद रखिएगा हमें जो ब्लेसिंग, हमें जो बरकत मिलती है, जो खुदा के वादे हैं, वो हमेशा यीशु मसीह के वसीला से पूरे होते हैं। जो कोई यीशु मसीह से तल्लुक़ रखता है वही अब्राहम की नस्ल बन जाता है, खा वो यहूदी हो खा वो यूनानी। यानी कि अगर कोई ईमानदार है, अगर कोई गैर कमाम वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसको। अगर कोई ईमानदार है वो यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो वो उसमें अब्राहम में, उसकी औलाद में वो शामिल हो जाता है। लेकिन ये सारी की सारी जो ब्लेसिंग है वो यीशु मसीह के वसीला से। और यूनानी, जब हम यूनानी के लफ्ज़ के अंदर जाते हैं तो यूनानी भी गैर कौम के लिए इस्तेमाल होता है। बेशक ये मुल्क है, लेकिन यूनानी गैर कौम जो है अगर वो भी यीशु मसीह के अंदर आती है, यीशु मसीह को कबूल करती है, तो वह भी अब्राहम की नस्ल में चली जाती है। लेकिन याद रखिए इतने सारा सफ़र जो अब्राहम से अब्राहम तक हुआ, और अब्राहम जो उस मुल्क में, वो अदा मुल्क में भी पहुंच गया है, लेकिन याद रखिए उस मुल्क में पहुंचने से उसने क्या किया है, क्या उसकी बुलाहट, क्या उसकी वफादारी, क्या उसकी सरफराजी उसके साथ रहती है। आप देखिएगा, जानिएगा अब्रानियों का मुसन्नफ हम देखेंगे, अब्रानियों के मुसन्नफ में से अब्रानियों 11वां बाब उसकी 8वीं आयत में कुछ लिखा है। जब हम वहाँ से पढ़ेंगे तो हमें इसकी समझ लग जाएगी कि खुदा हमसे जो हम एक कौम बन जाते हैं, इसके अंदर हमारी बुलाहट भी है, हमारी वफादारी भी है, हमारी सरफराजी भी है। लेकिन आपने देखना है हमारी बुलाहट कैसी है, हमारी वफादारी कैसी है। अब्रानियों 11वां बाब उसके 8वीं आयत में लिखा है कि ईमान ही के सबब से, क्या जी लिखा है कि ईमान ही के सबब से अब्राहम
लोग अक्सर औकात अब्राहम पढ़ लेते हैं, ये अब्राहम लफ्ज़ नहीं है, अब्राहम से अब्राहम हो गया है। लिखा है कि ईमान ही के सबब से जो अब्राहम है जब बुलाया गया यानी कि जब उसकी बुलाहट हुई है तो उसने क्या किया है, कहता है तो हुक्म मान कर, यानी कि अब उसने उस बुलाहट के अंदर अपनी वफादारी को कायम करना शुरू कर दिया। कहता है कि हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। अब बात हो गया है खुदा उसके लिए वो मुल्क जो है वो मिरास के लिए दे रहा है, ये मैं तेरी औलाद को दूंगा, उसकी नस्ल को दूंगा। लेकिन क्या कहता है, कहता है कि अगरचा ये जानता ना था, अब्राहम जो था वो नहीं जानता था। कहता है क्या नहीं जानता था, ये जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ। हमेशा आप देखिए खुदा खुद आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें अपनी उस बुलाहट को जो हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है और हमारे लिए एक बुलाहट हो गई है, उस बुलाहट के अंदर हमारी वफादारी कैसी है। देखिएगा आगे क्या खुदा का कलाम है फरमाता है। लिखा है कि जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी वहाँ रवाना हो गया। क्या किया जी उसने, तो भी वहाँ रवाना हो गया, यानी कि जहाँ खुदा उसे भेजना चाहता था और वो वहाँ नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाता हूँ। लेकिन आगे देखिए बड़ी एक फेथफुल एक ईमान की बात निकलती है। क्या कहता है, कहता है ईमान ही से किसने, अब्राहम ने। कहता है कि ईमान ही से उस मुल्क मौदा में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदबाश की कि गोया गैर मुल्क था। अब हमने देखना है कि क्या बात हो रही है। एक ईमानदार, एक जो बिलीवर है, उसकी ज़िंदगी के अंदर कैसी बुलाहट होनी चाहिए, कैसी वफादारी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर भी बुलाहट है, वफादारी है, तो उसके साथ हमारे लिए भी एक सरफराजी है। वो सरफराजी क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर रुकूंगा और बात वापस करूँगा। क्या कहना चाहता है वो, कहता है कि ईमान ही से उस मौदा मुल्क में इस तरह मुसाफराना, यानी कि उसने इस तरह ज़िंदगी में, जैसा ये मुल्क ही नहीं है कि जैसे मैं कहीं और किसी मुल्क में जाता हूँ, उसने इस तरह अपनी मुसाफराना ज़िंदगी को उस मुल्क के अंदर, कनान के अंदर उसने बसर किया। लेकिन आगे बड़ी खूबसूरत आयत है जो हमारे दिल को तस्कीन देगी, हमें आगे सरफराजी के अंदर लेकर चली जाएगी। इसलिए कि जब बुलाहट है, बुलाहट में वफादारी है, तो वफादारी में ही सरफराजी है। और आगे लिखता है क्योंकि वो उस पायदार शख्स का, शहर का उम्मीदवार था जिसका मुमार और बनाने वाला खुदा है। अब वो बात कर रहा है जो अब्राहम है, वो इस मुल्क के लिए तको दौड़ नहीं कर रहा, बल्कि एक आला तरीन शहर है जो आसमानों पर है, जहाँ खुदा उसे लेकर जाना चाहता था। और उस शहर का मुमार, उसका बनाने वाला जो है वो खुदा मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने वादा किया है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ और आऊँगा और फिर तुम्हें अपने साथ उन घरों के अंदर ले जाऊँगा। उस शहर के अंदर जो बड़ा खूबसूरत है, आप मुकाशवा 21 बाइब को पढ़ लीजिएगा। आपको उस शहर के अंदर वो सारी बातें, उसकी खूबसूरती, उसका दबदबा, उस शहर का रूप आपको मिल जाएगा। हमने देखना है आज शाम इस खुदा के कलाम से, और हमने ये आल्टर कार इसमें से अखज़ करना है कि हमारी बुलाहट क्या है। और क्या हमारी बुलाहट है तो उसके अंदर हमारी वफादारी कैसी है। अगर वफादारी है तो सरफराजी क्या है। इस ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर हम भी मुसाफिर और परदेसी, हमने इस मुल्क के अंदर रहकर, हम जिस मुल्क के अंदर भी रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तुर्की में रह रहे हैं, अबू धाबी में रह रहे हैं, वाट एवर किसी भी मुल्क में हम रह रहे हैं, तो लेकिन हमने जानना है
یہ شہر ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ہم یہاں مسافر اور پردیسی ہیں۔ ہمارے لیے ایک بڑا پائیدار اور خوبصورت شہر ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، جہاں پر میرا اور آپ کا خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ایسا ہے کہ ہم بہت سی عبادت کر رہے ہوں، ہم بلیور بھی ہوں، تو بلیور تو تب ہی ہوتے ہیں جب خدا کے کلام کو سنا جائے۔ تو خدا کے کلام کو سننا ہے تو اس کے اندر بلاہٹ ہے، اگر بلاہٹ ہے تو اس بلاہٹ کے اندر وفاداری ہے، اگر وفاداری ہے تو اس کے ساتھ سرفرازی ہے۔ آپ ایمان رکھیے گا، آج شام ہسٹری بائبل مقدس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ ہم انسان ہیں اور گرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ خدا ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ رفتہ اور آہستہ چلتے ہوئے بھی اس مقام تک پہنچ جائیں۔ تو عزیزو، آج ہم نے غور کرنا ہے اور غور فکر بھی اس کے ساتھ ہم نے اپنی لائف کے اندر کرنی ہے۔ ہماری بلاہٹ ایک وفاداری کے ساتھ ہو، ایک سرفرازی کے ساتھ ہو۔ جب خداوند یسوع مسیح اس ہوا میں آئے تو ہم اس کے ساتھ اڑ کر اس کا استقبال کریں اور اس پائیدار شہر کے اندر جو نیا یروشلم ہے اس کے اندر ہمیں خدا لے کر جائے۔ جی، خدا کا شکر ہے کہ ہم سب نے خدا کے کلام کو سنا ہے، برکت پائی ہے، اور ہم وعدہ آج شام میں کریں گے کہ ہم اپنی بلاہٹ کو جانیں گے اور اپنی بلاہٹ کے اندر اپنی وفاداری کو قائم کریں گے، اور خدا خود ہی ہمیں اپنے وعدوں کے مطابق ہمیں سرفرازی عنایت کرے گا۔ آئیے عزیزوں، آنکھوں کو بند کریں گے۔ مہربان آسمانی باپ، شکر گزار ہے آج شام کے لیے، اس وقت کے لیے خدا جو تمہیں عنایت کیا ہے، زندہ رکھا ہے اور اپنے کلام کی اس خدا مکاشفہ کو ظاہر کیا ہے تاکہ ہم اس تیرے کلام کو خدا تیرے دوسرے لوگوں تک خدا اس کلام کو پہنچا سکے۔ آج میں خدا پر امید ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جتنوں نے تیرے خدا کے کلام کو، تیرے کلام کو سنا ہے، تیرے لوگوں نے برکت پائی ہے۔ اگر کہیں گری ہوئی بھی ہے تو خدا تجھ سے معافی مانگ کر آگے بڑھنے کا مقدور حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ معافی تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، جس نے اپنا خون بہا کر اپنے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں اور کامل بھروسہ رکھتے ہیں اور کامل امید رکھتے ہیں کہ ہم اس بلاہٹ کو جانیں گے، اس وفاداری کو جانیں گے اور اس سرفرازی کو حاصل کریں گے جس کے لیے تو نے ہمیں بلایا ہے اور وفاداری کے لیے ہمیں قائم کیا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور تمام خدا یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خدا ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، بلیس چاہتا ہوں۔ خدا ہمیشہ تیرے لوگوں کے لیے تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے کھلا رہے، اور تیرا زور بازو ہمیشہ تیرے لوگوں کے اوپر ہے۔ دکھ، بیماری، پریشانی، بے روزگاری تیرے لوگوں کی زندگی سے جاتا رہے، اور خدا تیرا جلال تیرے لوگوں کی زندگی میں خدا ظاہر ہو، جس کے وسیلہ سے خدا تیرے لوگ جانے اور پہچانے جائے۔ شکر گزاری کرتا ہوں تو جو ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ آج پہر بھی تو نے ہماری دعا کو سنا اور قبول کیا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔